ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 13 جنوری کی سپیڈ نیوز۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ سڑکوں پر بڑھتے حادثات کے پیش نظر روڈ سیفٹی کو سب سے بڑی ترجیح کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے ٹریفک قوانین کے سخت نفاذ اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر زور دیا تاکہ حادثات کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بات روڈ سیفٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی جو حیدرآباد کے یوسف گڑے میں واقع کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی انڈور اسٹیڈیم میں ریاستی پولیس محکمے کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے امن و امان سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ٹریفک کنٹرول سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی تعداد اور حادثات نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ روڈ سیفٹی کے معاملے میں ڈی جی پی اور ایڈیشنل ڈی جی پی سطح کے افسران کی نگرانی میں سخت اقدامات کیے جانا چاہیے تاکہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد ہو سکے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ گاڑیوں کے نمبر کو بینک کھاتوں سے جوڑ کر ٹریفک چالان کی رقم براہ راست کھاتوں سے وصول کی جائے تاکہ جرمانوں پر مؤثر عمل درآمد ہو سکے اور خلاف ورزیوں میں کمی آئے۔ تلنگانہ بلدی انتخابات کے عمل میں تیزی آ گئی ہے اور انتخابی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اجلاس، ضلع کلکٹرز اور میونسپل کمشنر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی منعقد کی جا چکی ہیں۔ میونسپل انتخابات کے لیے وارڈ واری فائنل ووٹر فہرست جاری کر دی گئی۔ انتخابات ہونے والی 117 بلدیات اور 6 میونسپل کارپوریشنز میں مجموعی طور پر 51,92,220 ووٹرز ہیں، جن میں سے 25,37,136 خواتین اور 26,54,453 مرد اور 631 دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشنز واری مسودہ ووٹر فہرست منگل کے روز جاری کی جائے گی۔ میونسپل کارپوریشنز میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 57,41,111 ہے، جن میں ایس ٹی 2,46,764 اور ایس سی 7,75,653 افراد شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ایس سی اور ایس ٹی ریزرویشن 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر طے کی جائے گی، جبکہ بی سی ریزرویشن صرف ڈیڈکشن کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی۔ منگل کو ایک سیاسی طوفان اس وقت پھوٹ پڑا جب تلنگانہ کانگریس کے ایم ایل سی بوما مہیش کمار گوڑ نے انتخابی فائدے کے لیے بی جے پی پر بھگوان رام کو پکارنے کا الزام لگایا، جس کے جواب میں بی جے پی کے سینئر لیڈرز نے سخت جوابی حملہ کیا اور کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے ہندو عقائد اور سناتن دھرم کی بار بار توہین کر رہی ہے۔ تنازعے پر رد عمل ظاہر کرتے مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کانگریس قائد کے بیان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ہندوستان کی ثقافتی اور روحانی روایت کو سمجھنے کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ میاں پتنگ اڑاؤ لیکن کسی کی گردن مت کاٹو، یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں بلکہ حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار کی طرف سے جاری ایک شارپ اسٹریٹ اسمارٹ وارننگ ہے۔ سنکرانتی سے پہلے وی سی سجنار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر چینی مانجے کے مہلک استعمال کے خلاف عوام کو خبردار کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پولیس کے معمول کے مشورے سے ہٹ کر سجنار نے ایک واضح حیدرآبادی لہجہ اپنایا جس میں دکنی اردو اور تلنگانہ بولی کو ملا کر ایک سنجیدہ پیغام پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پتنگ بازی ٹھیک ہے لیکن اس سے کسی کی جان نہیں جانی چاہیے۔ ہیش ٹیگ سے نوٹ ٹو چائنیز مانجا کے ساتھ سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے ان کی اختراعی رسائن نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا اور تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن ڈی سی نے جعلی دوائی لیویپل 500 ٹیبلٹس ضبط کی، جس کو ایک مخصوص فارما کمپنی کے ذریعے تیار کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا۔ جمع شدہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ڈی سی اے کے ذریعے کیے گئے چھاپے کے دوران قطب اللہ پور کے چنتل میں لیوپل 500 mg گولیوں کا ایک جعلی ورژن گردش کر رہا تھا۔ چنتل میں درگا میڈیکل اینڈ جنرل اسٹور سے یہ جعلی ادویات کا ذخیرہ ضبط کر لیا گیا۔ ایک بیان کے مطابق لیویپل 500 mg ایک اینٹی ایپیلیپٹک دوا ہے جو فٹس کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد کو نامپلی نمائش میں اپنی خریداری مکمل کرنے کے لیے جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سست انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ان کے پاس نقدی کی کمی کی وجہ سے ڈیجیٹل ادائیگیاں ناکام ہو گئیں۔ یہ مسئلہ انٹری گیٹ سے لے کر نمائش میدان کے اندر شاپنگ اور کھانے پینے کے اسٹالوں تک دیکھا گیا۔ ہفتے کو جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نمائش میں موجود تھی، ان میں سے بہت سے آن لائن ادائیگی کے نظام سست ہونے کے باعث نقدی کی تلاش میں ٹکٹ کاؤنٹرز پر رکنے پر مجبور ہوئے۔ نمائش کے اندر کئی اسٹالز پر اس طرح کے مسائل کی اطلاع ملی جس سے خریداروں اور کھانے پینے کے شوقین افراد کو ادائیگی مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ شہر حیدرآباد کے مادھاپور سائبر گیٹ کے قریب سڑک کا ایک حصہ دھنس جانے کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت پر شدید متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں آئی کے آئی اے سے سائبر ٹاورز اور جے این ٹی یو کی طرف جانے والے راستے پر گاڑیوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ سائبر آباد پولیس کے مطابق متعلقہ محکمے کی جانب سے مرمتی کام شروع کر دیا گیا اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ آئندہ 5 دنوں تک اس راستے پر زحمت سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں۔ نئے ٹریفک پلان کے مطابق آئی کے
KEA से आने वाली ट्रैफिक को लेमन ट्री होटल, रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन से टेक महिंद्रा CII जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जहां से मुसाफिर साइबर टावर्स और फिर अपने बाकायदा रास्ते से JNTU की तरफ जा सकेंगे। संक्रांति त्यौहार के दौरान पाबंदी के बावजूद चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में एक दिल दहला देने वाले वाकये में पुलिस सब इंस्पेक्टर ASI नागाराजू इस वक्त शदीद जख्मी हो गए जब तेज धार चाइनीज मांझा इनके गले में लिपट गया और गला कट गया। जख्मी ASI को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। ASI नागाराजू जो उप्पल स्वरूप नगर के रिहायशी नलकुंटा पुलिस स्टेशन में तैनात हैं, पीर की शाम उप्पल से नुमाइश ड्यूटी के लिए रवाना हो रहे थे कि अचानक पतंग का तेज धार चाइनीज मांझा इनके गले में फंस गया। मांझे के जोर से खींचने के बायस इनका गला कट गया और शदीद खून बहने लगा। मकामी अफराद ने फौरन सूरत हाल को भांपते हुए इन्हें LB नगर के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इनकी हालत को संगीन करार दिया है। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाके राजेंद्र नगर के बुदवेल में मंगल की सुबह एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में अचानक खतरनाक आग भड़क उठी। प्लांट से उठने वाले सियाह और कसीफ धुएं के बादलों ने आग की शिद्दत को जाहिर किया, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में शदीद खौफ फरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर वहां पहुंच गई, जहां आग बुझाने की कार्रवाइयां शुरू कर दी। फायर फाइटर्स इमारत के अंदर दाखिल हुए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद शोरों पर काबू पाया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की असल वजह से होने वाली माली नुकसान का तखमीना होने नहीं लगाया गया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोश्त की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। त्यौहार की मांग और पैदावार में कमी की वजह से चिकन और मटन की कीमतों में अचानक 100 रुपये से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माह जो चिकन 230 से 240 रुपये किलो दस्तयाब था, अब इसकी कीमत 330 से 340 रुपये तक पहुँच गई है। हैदराबाद, विजयवाड़ा और वरंगल जैसे शहरों में स्किनलेस चिकन की कीमत 340 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मटन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ, जहाँ हड्डी वाला मटन 1050 रुपये और बगैर हड्डी वाला मटन 1250 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि आम दिनों में यह 800 रुपये तक दस्तयाब होता था। सबसे ज़्यादा इजाफा देसी मुर्ग की कीमतों में देखा गया, जहां देहातों में 2500 रुपये तक फ़र्क हो रहा है। कीमतों में इस भारी इजाफे के बावजूद गोश्तखोरों के जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई और त्यौहार की मुनासिबत से दुकानों पर भारी हुजूम देखा जा रहा है। कोकटपल्ली के अर्जुन थिएटर में फिल्म देखने के दौरान पीर के दिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म देखते हुए एक शख्स अचानक फौत हो गया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब थिएटर में फिल्म की नुमाइश जारी थी, जिससे वहाँ मौजूद अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक फिल्म देखते हुए एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में मौके पर ही फौत हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त आनंद कुमार के तौर पर हुई, जो रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बताए गए। उन्होंने 12वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दी और वजीफे पर सबकदोश हो चुके थे। हो गया 11:30 बजे के शो के लिए फिल्म देखने थिएटर आए थे। बैरून मुल्क रोजगार का ख्वाब दिखाकर बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने वाली एक जाली मैन पावर कंसल्टेंसी का पर्दा तेलंगाना की जगतियाल पुलिस ने फाश कर दिया है। जगतियाल में कायम विजेता मैन पावर कंसल्टेंसी के मुंतजिम को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने इस केस में 114 पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगतियाल DSP रघुवेंद्र ने केस की तफसीलात बताई। इनके मुताबिक सहारंगापुर मंडल के पंबटला गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला कामूनी गंगाधर कवायद के खिलाफ जगतियाल जिले मरकज़ में विजेता मैन पावर कंसल्टेंसी को लीज पर लेकर चला रहा था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि गंगाधर बैरून मुल्क मुलाजिमत का दिलाने का झांसा देकर नौजवानों से भारी रकम वसूल करता था, मगर जॉब वीज़ा के बजाय विजिट वीज़ा पर इन्हें बैरून मुल्क भेजने की तैयारी भेजकर धोखा देता रहा। इस धोखा का शिकार बनने वालों में एक मुतासिर शख्स रविंदर गाँव वपुलापुर जिले करीमनगर ने जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कर्जों के दबाव शौहर की मुबैना अजियत बर्दाश्त न कर पाने के बायस एक सरकारी खातून टीचर ने फांसी लेकर खुदकशी के लिए दिल दहलाने वाला वाक़या कोरटला में पेश आया, जिस इलाके में गम की लहर दौड़ गई। इससे चिरंजीवी मकामी अफराद के मुताबिक आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले वंगाश्री धर कपड़ों का कारोबार करते हैं, जबकि इनकी अहलिया रमिया सुधा 36 साल वरंगल जिले के रायपत्ती में वाक़ सरकारी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में उस्ताद थी। संक्रांति की तातीलात के सब रमिया सुधा हफ्ते को कोरटला अपने घर आई थी। कारोबार ठीक न चलने के बायस शौहर को माली मुश्किलात का सामना था। मकान के लिए गए कर्जों के साथ साथ ज़ाती कर्जे भी बढ़ते चले गए, जिसके नतीजे में खानदान की माली जिम्मेदारियों का ज़्यादातर बोझ रमिया सुधा की तनख्वाह पर आ गया। बैंक कर्जों और दीगर इदारों के लिए कर्जों में रमिया सुधा बतौर ज़ामिन शामिल थी, जिससे उन पर दबाव मज़ीद बढ़ गया। कर्जों की अदायगी के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहे थे। पीर के रोज़ भी इस बात पर दोनों के दरमियान तलकलामी हुई। शदीद ज़हनी दबाव के आलम में रमिया सुधा ने अपने दोनों बेटों को खेलने के लिए बाहर भेजा और घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया के वालिद रघुराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते इल्ज़ाम के दामाद श्रीधर ने ज़बरदस्ती कर्जा करवा कर इनकी बेटी को इस इंतहाई कदम पर मजबूर किया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
तेलुगु देशम पार्टी के कदावर लीडर और साबिक रियासती वजीर जी सूर्य नारायण कल शाम चलबसे इतवार के रोज श्रीकाकुलम के अरसावली में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर वो अपना अचानक से फिसल कर गिर गए थे, जिसके बायस इनके सर पर शदीद ज़ख्मात। इन्हें फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ हालत तशवीशनाक होने की बिना पर इन्हें ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया था। ताम इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। सूर्य नारायण की सियासत का आगाज़ एक काउंसलर के तौर पर हुआ था, जिसके बाद वो अपनी मेहनत और दियादनतदारी की बदौलत म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन, रुकन असम्बली और फिर वज़ीर के ओहदे तक पहुँची। वो 1985 से मुसलसिल 4 बार श्रीकाकुलम हल्के से रुकन असम्बली मुंतखब हुए और 1990 में एन टी रामाराव की काबीना में बतौर वज़ीर खिदमत अंजाम दी। इन्हें एक निडर और उसूल पसंद सियासतदान के तौर पर जाना जाता था। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आज़म चंद्रबाबू नायडू ने ज़िले काकीनाड़ के गांव सारलंका पल्ले में पेश आने वाले अफसोसनाक आतिशबाज़ी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए हुक्काम को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर पेश आने वाले इस वाक़े पर मंगल को वज़ीरा और आला हुकाम के साथ जायज़ा इजलास मुनाक़िद करते हुए वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि जिन खानदानों के मकान तबाह हुए इन्हें फौरी तौर पर नए मकान मंजूर किए जाएँ। हुकाम ने वज़ीर अदला को मुतल्लिक़ किया कि फौरी इमदाद के तौर पर हर मुतासरा खानदानों को 25,000 रुपये नक़द फराहम किए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मज़ीद हिदायत दी कि जब तक नए मकान तामीर नहीं हो जाते मुतासरीन की रिहाइश और दीगर ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने इस वाक़े में तल्फ दस्तावेज़ात, आधार कार्ड और दीगर कागजात दोबारा जारी करने के लिए खुसूसी कैंप लगाने के अहकामात भी जारी किए। उन्होंने वज़ीरा और ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत दी कि इमदादी कामों की खुद निगरानी करें। वाज़ेह है कि सारलंका गाँव में भयानक आग लग गई थी। इस वाक़े में 38 घर जलकर खाकसर हो गए थे और 120 अफराद बेघर हो गए थे। इस वाक़े के बाद 120 से ज़्यादा अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात के ताल्लुक से राय दहिंदगान में बेदारी पैदा करने के लिए BMC ने खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसे समाज के तमाम तबकों की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। महाराष्ट्र में होटल शोबे की मारूफ तंजीम इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आहार ने भी इस मुहिम में हिस्सा लेने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 15 जनवरी को वोट डालने वाले की उंगली पर लगाए जाने वाले सयाही के निशान की बुनियाद पर आहार के ज़रिए निगरानी जारी होटलों में खुसूसी छूट दी जाएगी। जिन होटलों में सहूलत मुहैया कराई गई वहाँ खास बोर्ड आवेज़ा हैं। वाज़ेह है कि मज़कूरा मुहिम के तहत मुख्तलिफ सोशल मीडिया और एजुकेशनल मीडिया के जरिए सड़कों पर ड्रामे, राय दहिंदगान, आगाही वाक, मॉर्निंग वाक, स्कूलों और कॉलेजेस में वोट की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। इस पस मंज़र में आहार ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन इंतजामिया के साथ मिलकर वोटर बेदारी मुहिम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खत लिखते हुए वोटरों की हरासमेंट की जाने और इंतखाबी कवायद की मुबैना खिलाफवर्जियों पर सख्त एतराज़ दर्ज कराया है। जारी खुसूसी नज़रसानी अमल SIR के दौरान ये वज़ीर आला का 5वां खत है, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद संगीन खदशात की निशानदेही की है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बताया कि इससे कबल भी वो इस मामले पर मुसलसल खतूत के जरिए कमीशन को आगाह करती रहीं। ताज़ा खत में उन्होंने कहा कि वोटर अपनी अहलियत साबित करने के लिए तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करा रहे हैं। इसके बावजूद कई मामलात में ना तो मुनासिब रसीदें दी जा रही हैं, न ही कागजात की बाकायदा इंदराजी तस्दीक हो रही है। बदअज़ा इन्हें दस्तावेज़ात को नहीं मिला या रिकॉर्ड पर नहीं कहकर मुस्तरद किया जा रहा है। कोलकाता में IPAC के दफ्तर पर ED के छापे पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने कहा कि लगातार देखा गया है कि हुकूमत ED, CBI, ECI का गलत इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरह मगरबी बंगाल में मजबूती से लड़ रही है, BJP नहीं चाहती कि वो दोबारा कामयाबी हासिल करे, इसलिए वो इन्हें रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। लेकिन TMC आइंदा इंतखाबात में भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। मरकज़ी मेहनत और रोज़गार के वज़ीर मनसुख मंडाविया के एक सख्त इक़दाम के बाद क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने अपने तमाम ब्रांड प्लेटफॉर्म से 10 मिनट की टाइम लिमिट के दावे को मुकम्मल तौर पर हटा दिया है। ये फैसला डिलीवरी वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर काम के हालात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। मरकज़ी वज़ीर मेहनत मनसुख मंडाविया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और ज़ोमाटो के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने इन कंपनियों को मशवरा दिया कि डिलीवरी के टाइम लिमिट्स को हटा दें, ताकि डिलीवरी पार्टनर्स की ज़िंदगी को ख़तरा न हो और वो महफूज तरीके से काम कर सकें। मीटिंग में तमाम कंपनियों ने हुकूमत को यकीन दिलाया कि अपने ब्रांड के इश्तिहारात सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म से डिलीवरी टाइम के टाइम लिमिट्स को हटा देंगे। ब्लिंकिट ने इस तब्दीली को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया है, जबकि दीगर कंपनियां जल्द ही इसकी पैरवी करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अनूप नामी एक शख्स ने अपनी बीवी सोनी को थाने के अंदर गोली मारकर कत्ल कर दिया। खातून 5 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई थी। पुलिस ने इसे बाजियाब करते हुए इसके शौहर को इत्तला दी और उसके शौहर को स्टेशन पर तलब किया। शौहर पिस्तौल लेकर पुलिस स्टेशन आया और उसकी बीवी को बरहमी के आलम में गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अदालती मुलाजिम रशीद को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल की कार हमलावरों में से एक शख्स की मोटरसाइकिल से टकरा गई थी। मोटरसाइकिल सवार ने कुछ आदमियों को बुलाया और रशीद को बेदर्दी से मारा पीटा, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। कलीम, शान और नसीम समेत 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। चंद रोज को हिंदू डिग्री कॉलेज के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के तालिब इल्म फरहाद अली को उसके साथी तलबा ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। फरहाद अली को आग क्यों लगाएगी, ये बात सामने आ गई। मुल्जिम तालिब इल्म ने आग लगाने की चौंका देने वाली वजह भी बता दी है। मुल्जिम तालिब इल्म का कहना था कि साथी तालिब इल्म फरहाद अली को इसलिए आग लगाई गई क्योंकि वो ज़हीन और कॉलेज में हर कोई इसे पसंद करता था, हर कोई इससे बात करता था। इसी हसद की वजह से आरुष और दीपक ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों मुल्जिम तलबा ने पूछगछ के दौरान ये बात पुलिस को बताई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जहां हाईवे पर एक के बाद एक बम की तरह सिलेंडर फटने लगे, पिकअप ट्रक में गैस सिलेंडर के बायस जबरदस्त आग लग गई। हादसा कौमी शाहरा 53 पर चुपल्ली के करीब पेश आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईरान में खामनाई मुखालिफ मुजाहिरों से मुतल्लिक मुकदमे में 26 साला इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारियां जारी हैं, जिसे मुल्क जारी तहरीक से मुतालिक पहली फांसी करार दिया जा रहा है। सुल्तानी को 8 जनवरी को तेहरान के करीब कारात में होने वाले मुजाहिरों में हिस्सा लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी फांसी 4 शुबे को मुकर्रर की गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। ट्रंप ने वादे किया कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने ऐसे ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क को अमेरिका के साथ तमाम तिजारत पर 25% इजाफी टैक्स अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि ये उसूल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल लेशन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।